Okay. So today we are going to start the design of cantilever slab. Okay. So all of you have received the PDF of one-way slab design. Yes or no? Yes, sir. And I have provided you the detailing of one-way slab with the bent up bars and with the straight bars. Yes. Everyone has received this or not? Please tell me. Okay, guys. So try to understand whenever you will be curtailing the bar means with the straight bars if you are detailing the one way slab, then the alternate bar cut is the same bar which will be cut on the left and on the right side. Okay, are you getting this point? One bar straight up to the support and other bar is curtailed at both the support. Okay, up to a length 0.15 times lx. This should be remembered by you. Okay, तो चलिए आगे बढ़े हम लोग. आपके क्लासमेट से यार अभी फिर से ये हो गए, कोई लेक्चर नहीं कर रहा है शायद, है ना? क्या प्रॉब्लम है क्या पता यार. सब घर पे मिल रहा है बैठे बैठे फिर भी नहीं करना चाहते. तो दीज आर सम टिपिकल डिटेलिंग ऑफ कैंटिलीवर एंड कंटिन्यूअस स्लैब. ये हम आगे डिजाइन करने वाले हैं, तो उनका टिपिकल डिटेलिंग आपको यहाँ पे दिया गया है. ओके, इसी हिसाब से हम अपने बीम और कैंटिलीवर स्लैब सॉरी कैंटिलीवर स्लैब एंड कंटिन्यूअस स्लैब को डिजाइन करने वाले हैं बेटा. ओके, एंड द सेम अप्रोच इज यूज्ड for detailing in the beam also, but the difference is that the beam will have shear reinforcement also. Okay, everyone is getting this difference or not? Hello, is it clear to everyone? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Chalo. So referring to previous question, we will solve one cantilever lab part. Okay, question 2, design of cantilever slab. So question statement is like this: refer previous question, refer previous question. Okay, all the data will be of previous question, and there is provision of balcony along longer side of slab. Okay, previous question में जो आपका slab था बेटा, okay, कौन सी slab which is in previous question, longer side of slab of length मीन्स उसका प्रोजेक्शन कितना होगा 1.5 मीटर. ओके, उसका प्रोजेक्शन होगा आपके बीम के फेस से, मतलब आपके स्लैब के फेस से कितना आगे होगा वो 1.5 मीटर. एक लाइव लोड on the balcony has 2.5 kilonewton per meter square, and design this cantilever projection using M20 and Fe415. We will keep material same because whenever you will design one slab and its cantilever projection, you will use the same material, guys. So what exactly the condition in this is your 4/10 वाला slab जो आपको पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, if you are remembering.
यस, याद आ रहा है कि ये? एंड नाउ यू हैव provided with this balcony projection. Okay beta, this is your balcony. Okay, this is 4 meter by 10 meter, sorry, and this is your 1.5 meter projection. Everyone is getting this problem or not? Please tell me. प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है क्या बेटा? समझ में आ रहा है सबको? ओके, आपको उस केस में बेटा, ओके, इसमें आपको दिया गया था सपोर्ट विड्थ, कितना दिया था? 230 mm। ओके, उतना ही आपको लेना है। और ये आपकी बीम, ये जो इधर से आएगी ये इसी तरीके से आगे आपकी यहाँ पे रहेगी। सिमिलर वे में आपको यहाँ पे भी एक बीम इस तरीके से दिखेगी। समझ में आ रहा है कि ये चीज? ओके, तो आपको बेटा ये रेड वाली स्लैब अभी डिजाइन करनी है, जो अभी मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पे, देख लो, कैंटिलीवर स्लैब। चलिए, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? What will be the first step, guys? Aspect ratio. Aspect ratio. हाँ, अभी एस्पेक्ट रेशो की अगर बात आ जाए तो इसमें आपको एस्पेक्ट रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। कैंटिलीवर स्लैब, यहाँ पे एक चीज लिख लो, कैंटिलीवर स्लैब ऑलवेज डिजाइंड एज वन वे स्लैब, ऑलवेज डिजाइंड एज वन वे स्लैब। ओके, ये बात सबको क्लियर हो गई? Yes. हाँ, चलो, तो पहली स्टेप बताओ बेटा एस्पेक्ट रेशो के बाद। अभी इधर तो एस्पेक्ट रेशो चेक करने की जरूरत नहीं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? Depth डेप्थ assumption. अजम्पशन, बराबर, डेप्थ अजम्पशन फ्रॉम सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया, सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, हाँ, तो चलिए डेप्थ अजम्पशन कर लो। कैसे करोगे? तो उसके लिए आपको लगेगा बेटा क्लॉज नंबर, कौन सा क्लॉज लगेगा आपको? 23.2.1। उसके लिए आपको लगेगा 23.2.1, क्लॉज नंबर 23.2.1, पेज नंबर 37, IS 456, IS 456। ओके, तो ये आपको यहाँ पे लगेगा। तो दिस इज द क्लॉज ऑफ रेफरेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेट। इसमें क्या लेना है बेटा आपको? बेसिक L/D रेशियो, बराबर है, टू लिमिट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो LX/D। अभी मुझे सबसे पहले ये बात बताओ, इसमें LX क्या होगा? ये जो आपकी कैंटिलीवर स्लैब है दोस्तों, ये कितनी है? यहां से 1.5 मीटर प्रोजेक्शन बाहर की तरफ, और ये लेंथ मैंने वही सेम रखा है 10 मीटर, जो आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में दिया गया था। तो इसमें LX क्या लोगे बताओ? 1.5. यस, तो बेटा कभी भी याद रखना, ये जो मेन डायमेंशन होगा इसका, मतलब शॉर्टेस्ट डायमेंशन ऑफ कैंटिलीवर स्लैब, वही आपकी मेन डायरेक्शन होगी। यस, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? So Lx will be 1.5 meter and Ly will be again 10 meter here. Okay, इतनी चीज आप ध्यान में रखना। कैंटिलीवर पोर्शन का शॉर्ट पोर्शन, मतलब जो प्रोजेक्शन होता है बाहर की साइड में, दैट इज द मेन पॉइंट, और दैट इज द मेन और सिग्निफिकेंट लेंथ टू बी डिजाइन अगेंस्ट द मेन रेनफोर्समेंट। तो Lx/D रेशियो कितना बताया गया बेटा कैंटिलीवर के लिए? 7 बताया गया है, बराबर है। और इंटू आपके K1, K2, K3, K4, ये वाले मटेरियल आते हैं। यस और नो गाइस? कोएफिशिएंट, सॉरी। तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी डेप्थ का अजम्पशन ही है, तो इन सबको मान लेते हैं बेटा 1।
चलेगा सबको? तो यहाँ से आपको दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा, Lx/7 शुड बी लेस देन और इक्वल टू डेप्थ अज्यूम। ये हम लोग अज्यूम करने वाले हैं, तो उसको लिख देते हैं कि अज्यूम करने वाले हैं। एवरीवन इज गेटिंग दिस और नॉट, बताओ? तो यहाँ से बेटा आपको डी अज्यूम कुछ इस तरीके से मिल जाएगा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू Lx लेंगे आप 1500 डिवाइडेड बाय, अगर आप 7 करोगे बेटा कितना आ रहा है देखो तो, दो 210 कुछ आएगा ऐसे, कितना आ रहा है? 214.28। 214.28 बराबर। तो डेप्थ अज्यूम आपका कितना आ रहा है बेटा, 214.28 mm। अभी मुझे बताओ, आपने ये जो प्रीवियस वाली स्लैब है बेटा, ये कैसे डिजाइन की है? वन वे स्लैब की तरह डिजाइन की है, और इसकी थिकनेस कितना है आपको? हाउ मच इज द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब? ये जो आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो स्लैब डिजाइन किया, इसका थिकनेस कितना आया है बेटा, बताओ? बता रहे हो क्या? So D was 200 mm and capital D was 220 mm। तो अभी हम क्या करते हैं, यही डेप्थ आगे कैरी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डी अज्यूम क्या कर लेंगे, ये भी बहुत ज्यादा होगी इस कैंटिलीवर के लिए, क्योंकि बेटा लोड कम कर दिया है हमने। सो हम क्या करते हैं, डी अज्यूम कर लेते हैं 200 mm। डी अज्यूम कर लेते हैं 200 mm। सो अगेन हमारा कैपिटल डी भी कितना आएगा बेटा, प्रीवियस स्लैब की तरह, सो 200 + 20 इक्वल टू 220 mm। ये समझ में आ रहा है कि आपको स्लैब को प्रोपोर्शनिंग किया जाता है यस बेटा? सर। और इससे आप कम कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि लोड आपकी कम है तो डेप्थ रिक्वायर्ड बहुत कम आएगी आपको इसमें। ये आप बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, हम लोग क्या करेंगे अभी, इसको डेप्थ को कर्टेल कर देंगे आगे चल के जब हम फ्लेक्चर का चेक देंगे। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? लेकिन फिलहाल के लिए, अजम्पशन के लिए, हम क्या करते हैं, प्रीवियस का जो हमारा पिछला वाला जो स्लैब है, ये वन वे स्लैब जो हमने डिजाइन किया था 4x10 वाला, उसी की सेम इसकी डेप्थ है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। चलो, व्हाट इज स्टेप 2? इफेक्टिव स्पैन, यस और नो? इफेक्टिव स्पैन, Yes, sir. इफेक्टिव स्पैन कहाँ से मिलता है बेटा हमें? इफेक्टिव स्पैन हमें मिलता है क्लॉज नंबर 22.2 से। ओके, क्लॉज नंबर 22.2, क्लॉज नंबर 22.2, पेज नंबर 34, 35। तो आप अगर पेज नंबर 35 पे आएंगे तो वहां पे आपको कैंटिलीवर के लिए दिया गया है बेटा कि किस तरीके से आप इफेक्टिव स्पैन ले सकते हैं। तो अभी इसमें दो तरीके होते हैं, कैंटिलीवर बताने के भी दो तरीके होते हैं, देखो जरा ध्यान से। ये या तो आपका कैंटिलीवर बेटा सिर्फ कैंटिलीवर स्लैब होगा, ओके, मतलब उसका ये जो एंड है बेटा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब आगे इसके कुछ भी काम नहीं होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और आपका कैंटिलीवर कुछ इस प्रकार से हो सकता है, ये चीज समझ में आ रही है कि सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, तो बेटा अगर आपका कैंटिलीवर इस तरीके से हुआ, ये आपकी कंटिन्यूअस एज वाला कैंटिलीवर हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस एज वाला। तो अगर इस तरीके से आपका अगर कैंटिलीवर स्लैब होगा, तो आप उसका इफेक्टिव लेंथ कैसे लेने वाले हो, एल इफेक्टिव, वो आप लेने वाले हो बेटा एल नॉट, मतलब क्लियर, ओके, क्लियर डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट फेस टू द एंड ऑफ दिस कैंटिलीवर प्लस D/2 लोगे। और अगर ऐसी केस होगी जिसमें ये आपका BS होगा, विड्थ ऑफ सपोर्ट, तो इस केस में आपका इफेक्टिव लेंथ कितना आने वाला है बेटा, एल क्लियर प्लस BS/2। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस आर सर। यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। हाँ, तो अभी अपने क्वेश्चन में बताओ बेटा कौन सी केस है, अपने क्वेश्चन में सेकंड। बताओ। सेकंड वाली केस है।
तो बताओ इसके लिए एल इफेक्टिव कितना आएगा इस क्वेश्चन में। देयरफॉर एल एक्स इफेक्टिव इक्वल टू एल एक्स प्लस BS/2. बी एस बाई। वेरी गुड। सो एल एक्स इज 1500 प्लस बी एस मतलब 230/2। कितना हुआ ये 115 मतलब 615 1650। अरे सॉरी 1615 आना 215. चाहिए। 1615 आना चाहिए बराबर। Yes, sir. 1615 mm। ओके चलो इफेक्टिव डेप्थ आ गया। फिर क्या करते हैं बेटा हम लोग। व्हाट इज स्टेप नंबर 3। लोड कैलकुलेट। लोड कैलकुलेशन फॉर बीएम एंड एसएफ। तो क्या करेंगे क्या क्या दिया है वो देख लो पहले। लाइव लोड कितना दिया है बेटा 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे अभी ये जो हमारा कैंटिलीवर स्लैब है 1.5 बाय 10 मीटर का बराबर है बेटा। 1.5 बाय 10 मीटर का इसको क्या कर लेंगे हम 1.5 बाय 1 मीटर का टुकड़ा मान लेंगे। ओके सिर्फ हम लोग इतना ही स्लैब डिजाइन करेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। Yes, sir. यस। सो दिस विल बी द विड्थ ऑफ दिस स्लैब। ये समझ में आ रहा है ना बेटा सबको। अगर ये उसका लेंथ मैंने अज्यूम कर लिया है तो दिस विल बी द विड्थ 1 मीटर। तो इस 1 मीटर विड्थ के लिए अगर करेंगे तो आपको लोड किस लाइन पे डालना है बेटा किस लेंथ पे डालना है मेन 1 meter. लेंथ पे। 1.5 1.5. मीटर पे आपको लोड डालना है बराबर है। तो आप क्या करेंगे इस 1 मीटर से इस लोड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 पॉइंट ये मीटर स्क्वायर मतलब ये आपको पूरे एरिया पे लोड दिया गया था बेटा इस पूरे एरिया का। ओके पर मीटर स्क्वायर 1 मीटर बाय 1 मीटर के टुकड़े का एरिया आपको दिया गया था। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे इस 1 मीटर विड्थ से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हो। तो ये आपको यूडीएल के फॉर्मेट में मिल जाएगा। यस आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। यूनिट देखो बेटा यहाँ पे मीटर स्क्वायर है यहाँ पे मैंने मीटर कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया वही जस्ट एक्सप्लेन किया है। चलो सेल्फ वेट और डेड लोड कैसे कैलकुलेट करोगे 25 इंटू विड्थ 1 मीटर इंटू डेप्थ। डेप्थ कितना अज्यूम किया है बेटा हमने ओवरऑल डेप्थ लगता है यहाँ पे। तो 200 हमने स्मॉल डी लिया था कैपिटल डी हमने 220 लिया है तो 0.22। हाउ मच इज दिस 25 इंटू 0.22 5.5. 5.5 बहुत ज्यादा आ गया है ये लेकिन ठीक है देखते हैं। 5.5 किलो न्यूटन पर मीटर ये हो गया। फिर फ्लोर फिनिश अज्यूम कर लेते हैं बेटा। इस पर भी फ्लोरिंग होगी कि नहीं बताओ इस पर भी फ्लोरिंग Yes. होगा कि नहीं। यस सर। तो अज्यूम कर लो अज्यूम कर लो इसे कितना लेंगे 1 ले लूं या 1.5 ले लूं। इस पे आप ज्यादा 1. कुछ मतलब बैल्कनी में 1 ले लेते हैं इस पे। 1.5 भी लिया तो चलेगा प्रीवियस केस की तरह। ओके लेकिन बैल्कनी में हम ज्यादा मतलब इतना जो घर में जो आप हेवी मटेरियल यूज करते हो उतना बैल्कनी में आप नहीं यूज करोगे। यहाँ पे थोड़े टाइल्स भी हल्के यूज किए जाते हैं। तो सबके एडिशन कर दो बेटा 2.5 प्लस 5.5 कितना 8 और एक 9 हो गया बराबर। दिस इज योर डब्ल्यू। सो व्हाट इज Yes, sir. डब्ल्यू फ्रॉम हियर व्हाट इज डब्ल्यू फ्रॉम हियर 1.5 इंटू 9 तो ये आपका आ जाएगा 13.5 बराबर है क्या। चेक कर लो एक बार। अभी आपके पास कुछ इस Yes, sir. तरीके का हाँ अभी आपके पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बन गया बेटा आपका ये। अगर मैंने इसको फॉर द पर्पज अभी फिक्स मान लिया कैंटिलीवर है तो कंटिन्यूस है वो एज लेकिन फॉर द पर्पज अगर मैंने उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने का सोचा एनालिसिस क्वेश्चन में तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो चुका है बेटा। यस और नो बताते चलो। Yes. हाँ तो उसके बाद अभी आपको क्या करना है इसका बीएमडी और एसएफडी बनाना है। तो बताओ कैंटिलीवर का बीएमडी कैसे होता है निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है वो भी बताओ। इसका बेंडिंग कैसे होगा बेटा इस तरीके से बेंडिंग होगा Downward. बराबर। इस तरीके से इसका बेंडिंग होगा। ये है आपका एल इफेक्टिव। एल इफेक्टिव तो बताओ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पे आता है कि फ्री एंड पे आता है कैंटिलीवर में। Free end. फ्री एंड पे वेरी गुड।
कितने लोग बोल रहे हैं फ्री एंड पे आता है? जितने लोग हैं बेटा लेक्चर में, एटलीस्ट उतनों ने तो भी आंसर देना चाहिए। ओनली 20-22 बच्चे लेक्चर कर रहे हैं, उपकार नहीं हो रहा है मेरे पे, तो आपको आंसर देना पड़ेगा। नहीं करना है ना तो छोड़ के चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है मुझे आपकी, है ना? करना है ईमानदारी से करो, नहीं तो निकल जाओ, सीधी सीधी बात है। ओके, आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। दिस इज माई स्लोगन फॉर यू ऑल। प्यार से समझ नहीं आ रहा है सबको? तो आंसर बताएंगे सब लोग। किसको लगता है सपोर्ट पे मैक्सिमम होगा या फ्री एंड पे? एक बच्चे ने आंसर दिया है फ्री एंड पे, तो बाकी लोगों का क्या कहना है? फ्री हैंड पे होता है सर। फ्री एंड पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। वेरी गुड। और बेटा सभी लोग इस बात से सहमत है क्या? यस सर सर। ओके, वेरी गुड। तो अभी अभी मेरा मतलब मेरे दिल में अभी क्या चल रहा है पता है आपको? कि मैं अभी फोन में से आपके सामने प्रकट हूं और आपको एक बढ़िया तरीके से लाफा मारू बेटा सबको। ओके, अगर आपको इतना भी नहीं पता है कि कैंटिलीवर में बेंडिंग मोमेंट कहाँ मैक्सिमम होगा, तो आप एक काम करो। कप है सबके घर में, चाय के कप है? यस। उसमें पानी भरो बेटा, उसमें अपना नाक डुबाओ और बुड़बुड़ आवाज आने के बाद अपना जान छोड़ दो। सीधी सीधी बात है। अगर आपको इतना भी नहीं आ रहा है तो यू आर ऑफ नो पर्पज इन दिस सिविल इंजीनियरिंग फील्ड। आप किसी काम के स्टूडेंट नहीं हो फिलहाल इस वक्त के लिए। अभी भी टाइम है, संभल जाओ। देखो इसका एनालिसिस कैसे करते हैं, अभी सॉम में घुसाता हूं मैं आपको। हाँ बताओ, इसके क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले? अगर ए एंड है, ये बी एंड है, तो क्या करते हैं? समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो। बताओ क्या मोमेंट आएगा इसका? डब्ल्यू इंटू एल बाई टू। क्लॉकवाइज पॉजिटिव अगर ले लिया तो यहाँ पे कितने अननोन रिएक्शन बनते हैं फिक्स एंड पे, बताओ तो? आर ए एंड एम ए, बराबर है? आर ए एंड एम ए। तो यहाँ पे बेटा ये अगर पॉजिटिव आया तो आपका एम ए निगेटिव आएगा, इक्वल टू जीरो। तो एम ए की वैल्यू आपको क्या मिली? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। कहाँ पे मिली है? फ्री एंड पे मिली या सपोर्ट पे मिली, बताओ तो? सपोर्ट पे। सपोर्ट। हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे करो। आप जो इतना मस्त बता रहे थे ना मुझे आंसर, फ्री एंड पे मैक्सिमम होता है। कैलकुलेट करो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, बेंडिंग मोमेंट एट बी एट सेक्शन एक्स एक्स। करो तो कैलकुलेट। राइट साइड देखो बीम की, क्या है राइट साइड में इस सेक्शन के? जीरो। जीरो है। तो कौन बोल रहा था फिर यहाँ पे मैक्सिमम आएगा? क्या पता है फिर आपको? रट्टा मत मारो बेटा, चीजें समझने की कोशिश करो। आपको इतना तो भी अकल होना चाहिए। समझ लो, अगर आपका हाथ है, ये देखो मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे कैंटिलीवर को। यहाँ पे ध्यान दो सब। कैमरा में मैं अगर दिख रहा हूँ तो बताना, दिख रहा हूँ क्या मैं? यस सर। यस सर। हम्म। समझ लो बेटा, ये आपका कैंटिलीवर बीम है पेन, ये मैंने इधर उसको फिक्स पकड़ के रखा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। समझ में आ रहा है? अभी अगर मैंने इस कैंटिलीवर पे लोड लगाया तो मेरे को बेंडिंग का जो मेरे को फील होने वाला है वो यहाँ पे होगा या मेरे हाथ पे होगा, बताओ? करके देखो आप भी। कहाँ से उखड़ने की कोशिश करेगा ये? इधर से या हाथ पे। इधर से? तो फिर आपको बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा महसूस किधर होगा, सपोर्ट पे कि फ्री एंड पे? सपोर्ट। सपोर्ट। कमाल करते हो आप लोग। बेटा यहाँ से शुरुआत है अपनी, तो समझ के चलो आपको कितने दूरी की, मतलब आपको कितनी दूरी कवर करनी है। अगर आपको अभी भी नहीं क्लियर है कि कैंटिलीवर में बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे है, तो यू आर ऑफ नो यूज राइट नाउ। तो पढ़ाई आपको बेसिक से करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, देन एंड देन यू कैन गो फॉर एनीथिंग। अभी क्लियर है सबको? यस सर। हाँ यस तो सर। बताओ अभी बीएमडी कैसे बनेगी? ये अगर बीएमडी की मैंने जीरो लाइन बनाई है, तो बताओ बीएमडी यहाँ पे कितना पॉइंट आएगा? जीरो। यहाँ पे कितना आएगा? मैक्सिमम। अब बताओ स्ट्रेट लाइन से जोड़ू
या पैराबोलिक लाइन से? और एक नया कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे, और गलत आंसर्स बताओ। स्ट्रेट लाइन से जोड़ू ये दो पॉइंट्स या पैराबोलिक लाइन से? पैराबोलिक लाइन। ओके चलो ये क्लियर हो गया। फिर ऐसी पैराबोलिक लाइन या ऐसी पैराबोलिक लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है ना बेटा। 1 जो और 2, ऊपर वाली है, 2 नंबर। सेकंड वाली बराबर है। क्यों ऐसे आ रहा है ये पता है सबको? इसका रीजन पता है किसी को? क्योंकि आपका लोड बेटा ऊपर से नीचे है, इसके लिए आपका पैराबोला हमेशा ऐसे बनेगा। अगर आपने बीम को नीचे से लोडेड किया तो आपका बीएमडी ऐसे आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। तो ध्यान में रखो जरा दो चार चीजें बेटा। थर्ड ईयर में आ चुके हो, खत्म होने पे आ गया है आपका थर्ड ईयर, तो आपको इतनी चीजें तो भी बेसिक वाली पता होनी चाहिए। तो आपका बीएमडी बेटा कुछ इस तरीके से बनेगा। करके देखना ये चीज, भाई कुछ भी रटवा के नहीं बोल रहा हूँ, सबका प्रूफ है अपने पास। लेकिन अभी ये चीज मैं आपको पढ़ाते बैठा तो आरसीसी रह जाएगा अपना। और एसएफडी कैसे बनेगा बताओ तो? एसएफडी बताओ, एसएफडी। हम्म, एसएफडी कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा कि नहीं बताओ? कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल ऐसा बनेगा कि नहीं बताते चलो। इधर शेयर फोर्स कितना आएगा? बताओ बेटा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी फिर? इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? सर हाँ स्क्रीन दिसत नाही सर. क्या? स्क्रीन नहीं दिसत है? नाही पेज. नहीं। ये क्या चीज है? मेरे को तो दिख रहा है अभी। दिसते मैं सर. मोबाइल पे भी। आप एक काम करो, फिर से लॉगिन करो लेक्चर को जाके, छोड़ दो फिर से लॉगिन करो। क्योंकि मैं भी बेटा मोबाइल पे भी देख रहा हूँ, इसीलिए मेरे को तो सब दिखाई दे रहा है। नहीं तो 2 मिनट रुको, मैं यहाँ से फिर से एक बार लॉगिन करते। अभी विजिबल है सबको स्क्रीन? यस सर. चल हाँ बताओ बेटा, फिर कैंटिलीवर में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की अमाउंट, अभी लोकेशन तो बता दिया मैंने आपको, अमाउंट बताओ, अमाउंट कितना होता है? WL²/2 वेरी गुड। WL²/2. WL²/2 वेरी गुड। WL²/2। तो ये आपकी एसएफडी में बेटा लीनियर लाइन होगी, हाँ स्ट्रेट लाइन। और ये आपकी होगी सेकंड डिग्री कर्व, मतलब पैराबोला। ये याद रखना भाई, आपके लिए, मेरे लिए नहीं। तो ये होता है बेटा WL²/2। तो यहाँ पे आएगा WU, यहाँ पे आएगा LEX। तो बताओ WU/LEX²/2 कितना हो जाएगा आपका? 1.615 मीटर आपका स्पैन है इफेक्टिव, डिवाइड बाय 2। हाउ मच इज दिस बेंडिंग मोमेंट? $35.21 kN/मीटर, यस और नो? एंड व्हाट इज SF मैक्स? कहाँ पे आएगा SF मैक्स भी? ये कभी भी याद रखना, कैंटिलीवर पे बेटा, कैंटिलीवर में कभी भी उस फिक्स एंड पे या कंटिन्यूअस एंड पे ही मैक्सिमम मोमेंट एंड मैक्सिमम शेयर फोर्स आता है, हमेशा याद रखना। हम्म। तो SF मैक्स भी आपका ए पॉइंट पे आएगा, अगर आपने ए और ये को बी माना है तो। माइक ऑफ कर लीजिए, इसका चालू है। WU/LAX/2 बराबर है कि नहीं? या सिर्फ WU/LAX आएगा? बताओ जरा ध्यान से देख के। WL
बाय टू नहीं आएगा इस केस में। कैसे? यहाँ पे देखो, ये जो काम कर रहे थे हम, इस पे देखो जरा। ये आ गया आपको बेंडिंग मोमेंट समेशन एम एस ए समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 ले लो, तो क्या होगा? आर ए पॉजिटिव माइनस डब्ल्यू यू एल इंटू एल बाई टू। ओके, नहीं, ये गलत लिख दिया। उसको लेंथ से मल्टीप्लायर ही नहीं होगा। हाँ, ये इतना ही आएगा। तो यहां से आपको आर ए की वैल्यू कितनी मिल गई? W इंटू एल। ओके, यूडीएल का कन्वर्टेड पॉइंट लोड इज द शियर फोर्स एट दैट पर्टिकुलर सपोर्ट एंड। तो यहाँ से आपको डब्ल्यू एल एक्स मतलब 13.5 इंटू 1.615, 13.5 इंटू 1.615, 21.80। सर हाँ बोला। सर बेंडिंग मोमेंट 17.6 दिए थे ना। यस सर। ओके, यस। गलत कर दिया होगा फिर मैंने। 2 मिनट रुको। 12 सर 13.5 इंटू 1.615 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हाँ, 17.60, सॉरी। शेयर फोर्स चेक कर लो बराबर है क्या? यस सर। 17.60। चलो, इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? चेक फॉर। 28.4। इसके बाद क्या किया जाता है? चेक फॉर फ्लेक्सर। चेक फॉर फ्लेक्सर। चेक फॉर फ्लेक्सर कैसे होता है? कंपेयर एमयू टू एमयू लिमिटिंग। सो इधर से आपको क्या मिलता है बेटा? डी रिक्वायर्ड का चेक मिलता है। डी रिक्वायर्ड किस तरीके से आएगा? फॉर M20 एंड Fe415। तो इस पर्टिकुलर ग्रेड के लिए आपको मिलता है MU डिवाइडेड बाय 0.138 FCK इंटू बी। तो MU कितना है आपका अभी फिलहाल में? 17.60, 17.60 इंटू 10⁻⁶। अरे यार, डिवाइडेड बाय 0.138, FCK इज 20, बी इज 1000। करो कैलकुलेट, डी रिक्वायर्ड कितना है? स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? यस सर। हाँ करो इसको। 17.60 इंटू E6 डिवाइडेड बाय 0.138, 20, 1000 रूट। 79.85। 79.85 इतना रिक्वायर्ड है आपको। नाउ हम क्या करेंगे बेटा? डेप्थ को रिड्यूस कर देंगे। ओके, इधर का स्लैब क्या बालकनी का इतना बड़ा नहीं रखेंगे। हमने तो अजूम 200 किया था, याद आ रहा है क्या सबको? लेकिन आपको सिर्फ 80 रिक्वायर्ड यस है। सर। तो प्रोवाइड डी इक्वल टू 120 कर देते हैं। तो यहाँ से आपका कैपिटल डी आगे के कैलकुलेशन में कितना हो जाएगा? 140 आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। ओके, क्यों किया हमने ये? सिंस डी अज्यूम जो था आपका इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड, इसलिए हमने क्या किया बेटा? फॉर इकोनॉमी पर्पस, सेफ्टी तो है ही, फॉर इकोनॉमी पर्पस वी हैव रिड्यूस द डेप्थ अप टू दी 140 क्लियर, मतलब ओवरऑल डेप्थ। अब इसके लिए फिर से लोड वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये आपका सेफ ही होगा सेक्शन। हाँ चलो, इसके बाद क्या करते हैं? क्या करते हैं इसके बाद? स्टेप नंबर 5, AST कैलकुलेशन। AST कैलकुलेशन तो करो। AST कितना आएगा इसमें? व्हाट विल बी AST? 0.5 FCK BD अपॉन FY ब्रैकेट में 1 माइनस, ब्रैकेट सॉरी रूट में 1 माइनस 4.6 MU डिवाइडेड बाय 4.6 MU डिवाइडेड बाय क्या होता है? FCK B इंटू डी का स्क्वायर। पुट ऑल वैल्यूज 0.5 इंटू 20 इंटू 1000 इंटू 120 राइट नाउ। यूज दिस डेप्थ। ओके, अभी आगे के कैलकुलेशन में ये डेप्थ यूज करो। FY इज 415 ब्रैकेट में 1 माइनस रूट में 1 माइनस 4.6 इंटू वट इज MU 17.60 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय पॉइंट, अरे पॉइंट नहीं, कितना? FCK मतलब 20, 1000 इंटू 120 का स्क्वायर। चलो, हाउ मच इज दिस? एरिया ऑफ स्टील बताओ।
ये होता है मेन रेनफोर्समेंट। ओके, मेन रेनफोर्समेंट होता है। कितना एएसटी लग रहा है? 439.88। 439.88 सब लोग कैलकुलेशन करके चेक करेंगे। यस सर, राइट है। राइट है। चलो आगे बढ़ो। मिनिमम स्टील कितना होता है बेटा? अरे ये डबल डबल क्यों हो गया? 2 सेकंड रुको। अरे यार, 2 सेकंड रुको। यहाँ पे, यहाँ से क्या आया था बेटा हमारा? 138 इंटू 20 इंटू 1000, ये कितना आया था? 79 पॉइंट समथिंग ना, 85 mm। यस सो सिंस हमने यहाँ पे लिखा था डी अज्यूम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड, therefore provide 120 mm as small d and 140 mm as capital D। ओके, उसके बाद हमने लिखा था यहाँ पे स्टेप नंबर आपका V, दैट इज AST कैलकुलेशन। सो इसमें हम आप लोगों ने वैल्यूज पुट करके क्या आंसर दिया बेटा? AST का। और मेन स्टील चल रहा है, ये मेन स्टील। ओके, तो इसमें हमने पॉइंट फाइव 439। FC के BD अपॉन FY वाला फॉर्मूला लगाया, 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FC के BD स्क्वायर। इसमें आपने B की वैल्यू डाली 1000 और D की वैल्यू डाली 120 mm। तो आपको आंसर कितना मिला है? 439.88 mm स्क्वायर। चलो इसको मिनिमम स्टील के लिए चेक दे दो। व्हाट इज द मिनिमम स्टील रिक्वायर्ड इन स्लैब? AST मिनिमम कितना लेना है बेटा फॉर HYSD बार्स? 0.12%। 0.12% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन। तो ग्रॉस क्रॉस सेक्शन का 0.12% कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है देख लो। इससे बड़ा होना चाहिए, आपने जो प्रोवाइड किया है वो। ये गया इधर से, 10 बचा 1400 इंटू 0.12, 168। 12%, 14, कितना? 168। 168 mm स्क्वायर। ओके, तो दिस इज ओके। तो प्रोवाइड, ओके, यहाँ पे आपको क्या मिला बेटा? AST कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन AST मिनिमम, तो देयरफॉर ओके। उसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही चल रहा है। तो उसमें अभी क्या करेंगे हम? प्रोवाइड, अभी आपने पिछले वाले स्लैब को मेन बार कितने के प्रोवाइड किए हैं बेटा? वही सेम बार लाएंगे आप इसके लिए भी। प्रोवाइड 10 mm 5 बार एज मेन रेनफोर्समेंट। मेन रेनफोर्समेंट। अभी मुझे इतना बताओ, अगर आपका ये कैंटिलीवर स्लैब होगा, इसका कुछ आपको जो थिकनेस आया अभी 120 mm, सॉरी ओवरऑल आया 140 mm, बराबर। तो इसमें मुझे बताओ आप लोग, यस मेन रेनफोर्समेंट की जगह कहाँ पे होनी चाहिए? व्हाट इज द बेंडिंग पैटर्न ऑफ दिस स्लैब? लाइक दिस। तो आप मुझे बताओ इसमें टेंशन किस साइड पे आता है? टॉप में। ऊपर। और बॉटम में क्या आता है बेटा? कंप्रेशन। तो आप जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ये जो AST आप कैलकुलेट करते हो, ये AST टेंशन जोन में दिया जाता है या कंप्रेशन जोन में? टेंशन जोन। टेंशन जोन में दिया जाता है, टेंशन। सबको पता है ना। तो आपका बेटा कभी भी याद रखना, कैंटिलीवर में आपका मेन रेनफोर्समेंट हमेशा टॉप में रहेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। यस सर। हाँ, और इसके इसके नीचे आपके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बांधे जाते हैं। यस, समझ में आ रहा है सबको ये चीज? हाँ, तो ये आपने यहाँ पे क्या लिखा है चीज, कि प्रोवाइड 10 mm 5 बार्स एज अ मेन रेनफोर्समेंट एट टॉप। ओके, ये हमेशा याद रखना, एट टॉप मतलब क्या? टॉप में, बाय कीपिंग सम क्लियर कवर। क्लियर कवर 15 का रखने वाले हैं हम। ओके, तो उसके बाद क्या करना है फिर आपको?
हो गया। फिर स्पेसिंग कैलकुलेट कर लो मेन बार्स की। तो स्पेसिंग कैसे कैसे मिलता है बेटा? लॉजिकल स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या है? 1000 mm में एक बार का AST डिवाइडेड बाय AST कैलकुलेटेड। तो देख लो कितना हो रहा है ये। 1000 इंटू 10 इंटू π/4, मतलब π/4 इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाउ मच इज दिस? 439.88। कितना आ रहा है देखो तो ये चीज। 78.54 इंटू 1000, 78540 डिवाइडेड बाय 439.88। 178 आ रहा है क्या? Yes, sir. 178 आ रहा है सबका? यस सर। 178 ना। चलो ठीक है, देखते हैं। 178.54 कुछ तो भी आ रहा है। तो इसे हम लोग क्या कर देंगे? 170 mm लिख देंगे फिलहाल में। 10 के मल्टीपल में, या 175 भी कर सकते हो। ओके। स्पेसिंग क्या करते हैं बेटा? जनरली हम लोग कम करते हैं। हाँ, स्पेसिंग को राउंड ऑफ करने के लिए हम कम वाली वैल्यू यूज करते हैं, हमेशा याद रखना। ओके। तो अभी आप मुझे सिर्फ इतना बताओ। ओके, ये तो चीज आपकी हो गई। ये क्लियर है क्या सबको? बता दो। Yes. Yes, sir. चलो, ये आ गया। फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, अरे अरे इसके दो चेक रह गए ना। दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन, दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3D एंड 300। तो मेरे को नहीं लगता इसके ऊपर जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटा? 360। और 300 दोनों से कम है तो यही प्रोवाइड होगा। ओके, दिस इज योर सेकेंड स्पेसिंग, दिस इज योर थर्ड स्पेसिंग। तो तीनों में से मिनिमम हम लोग जनरली देते हैं। तो ये चीज लिखने से पहले यहाँ पे लिख ही दो भाई। क्यों मैं नहीं लिखना चाह रहा हूँ वो भी, उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा जब मैं आपको अभी डिटेलिंग एक्सप्लेन करूंगा इसकी। सो देयरफॉर प्रोवाइड 10 mm fibers as main reinforcement along 1.5 मीटर स्पैन। ओके, ये ध्यान में रखना, LX के अलोंग मतलब उसको पैरेलली रखा जाता है ये। इन टॉप एट द रेट 170 mm सेंटर टू सेंटर। ये ध्यान में रखना चीज। चलो, ओके। तो अभी क्या करते हैं इसमें देखो। इसमें आप लोग मिनिमम जो आपका ये है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बेटा यूज करेंगे हम 8 mm HYSD बार। 8 mm HYSD बार। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? मिनिमम एरिया ऑफ स्टील विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। सो देयरफॉर AST डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 0.12 BD, बराबर है कि नहीं? अब भी निकाला है हमने जस्ट। सो दैट इज 168 mm स्क्वायर। तो 168 mm स्क्वायर में प्रोवाइड करो 8 mm के 5 बार्स। तो इधर ही इसका स्पेसिंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्पेसिंग कैसे आएगा? पहला स्पेसिंग 1000 इंटू 1000 mm में रखेंगे इसको भी, 1 मीटर के टुकड़े के लिए डिजाइन करेंगे। एक बार का एरिया मतलब π/4 इंटू 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 168। कितना आ रहा है देखो तो ये। टू 99 आ रहा है सबका? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो इसको कर देते हैं 290 mm। ओके, इसको कर देते हैं बेटा 290 mm। एंड दिस वन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2 एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3। तो 2 एंड 3 क्या होता है इसमें? ये होता है बेटा आपका 5 टाइम्स D, मतलब 5 इंटू 120। तो ये आपका हो जाएगा 600 mm। और ये हो जाता है आपका 450 mm। सो ये चीज यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी 290 वाली। तो आप यहाँ पे क्या सेंटेंस लिखोगे? प्रोवाइड 8 mm 5 bars along 10 मीटर। ओके, लॉन्गेस्ट साइड, along मतलब उसको पैरेलल। ओके, बिलो द मेन बार्स। इधर देखो, हमेशा याद रखना, बिलो
मेन बार्स, अभी वन वे स्लैब में आपने अबव मेन बार्स रखा था, कैंटिलीवर में आपको किधर करना है इसको, सॉरी सिंपली सपोर्ट में आपने अबव मेन बार रखा था, इधर आपको बिलो मेन बार रखना है, तो उसके बीच का भी अंतर समझो। बिलो मेन बार्स इन टॉप, ओके, ऊपर ही देने हैं ये भी आपको, @ 290 mm सेंटर टू सेंटर, 290 mm सेंटर टू सेंटर। इज इट क्लियर? ये चीज Yes, sir. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. हाँ। अभी अभी आप घर पे क्या करोगे, अभी आप घर पे आपके पास एक होमवर्क रहेगा, क्योंकि मेरे को अभी आपको डिटेलिंग एक्सप्लेन करना है। तो स्टेप नंबर 6 मतलब चेक फॉर शियर, ये आप करेंगे। पहले सबसे पहले बताओ क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होगा बेटा कैंटिलीवर में? क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर कहाँ पे होता है कैंटिलीवर में? इट इज एट द Face of फेस support. ऑफ सपोर्ट। याद रखना हमेशा। तो आपने जो कैलकुलेशन करके रखा है शेयर फोर्स का, आपको नया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वही रहेगा। ओके, ज्यादा चेंज नहीं आएगी, सेंटर ऑफ सपोर्ट और फेस ऑफ सपोर्ट पे ज्यादा चेंज नहीं आएगा, तो वही शेयर फोर्स के लिए आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और सातवां चेक क्या देते हैं हम लोग? चेक फॉर बॉन्ड। ओके, एंड देन आठवां इंपॉर्टेंट चेक फॉर डिफ्लेक्शन। हो जाएगी ये चीज? कर लेंगे क्या घर पे, बताओ पहले। ओके, ये आपको अगेन LX/D अभी एक्चुअल कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा आपको। इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस 7 इंटू K1 तो 1 हो जाएगा, लेकिन आपको K2 कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी, मॉडिफिकेशन फैक्टर। ओके, ये करके देखना, ये मैंने आपको पिछले इसमें भी बताया है। K3 1 हो जाएगा और K4 भी 1 हो जाएगा। ओके, तो ये आपको करना है और ये चेक आपको सेटिस्फाई करवाना है। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके, चलो। तो अभी देखते हैं बेटा रेनफोर्समेंट, अभी देखते हैं रेनफोर्समेंट। अभी मुझे इतना बात बताओ कि आपके पास अभी ये जो AST वाला मुद्दा है ना, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली कैसे कंपेंसेट किया जाता है कंटिन्यूअस स्लैब में स्टील। ओके, तो यहाँ ध्यान से देखना, ये आपकी पिछली वाली स्लैब थी बेटा, ध्यान से इस चीज को समझना। ये आपकी पिछली वाली स्लैब थी जिसमें आपने क्या काम किया है, जिसमें आपने ये काम किया है, 2 सेकंड रुको। ये आपकी चारों बाजुओं पे सपोर्टेड थी कुछ इस तरीके से। याद हो रहा है क्या सबको ये पिछला वाला क्वेश्चन? याद हो रहा है सबको, बता दो। Yes, sir. ये आपका सपोर्ट था, यहाँ पर भी आपका सपोर्ट था, बराबर। और ये आपको थिकनेस मिला था बेटा इस स्लैब का कुछ इस तरीके से, बराबर है। ये चीज क्लियर हो रही है क्या सबको, बताओ पहले तो। ये चीज सबको क्लियर हो रही है क्या? Yes, sir. बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे बेटा, 2 सेकंड रुकना सिर्फ, हाँ। समझ लो सारी चीजों को। चलो, ये बात सबको क्लियर है, ये हमें स्लैब मिला था इस थिकनेस का।
ओके, ये बात क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. ओके, अभी आपने जो डिजाइन किया है बेटा वो कहाँ पे डिजाइन किया है? इस एक लॉन्गर साइड के आगे। अब अभी आपने जो बीम या स्लैब डिजाइन किया है वो कहाँ पे डिजाइन किया है? इस साइड के आगे। ओके, 2 सेकेंड रुकना, ये भी कुछ बावले की तरह करता है पावर पॉइंट। ओके, चलो। तो आपने अभी जो डिजाइन किया है दोस्तों, वो आपने डिजाइन किया है यहाँ पे, इस एज को आगे आप लोगों ने यहाँ पे डिजाइन किया है कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ, अरे बाप रे बाप, अरे कुछ अलग ही हो रहा है। हाँ चलो आ गए, दिख रहा है ना अभी क्लियर? मुझे लगा वो भी गया। Yes, Yes. sir. हाँ, तो बेटा अभी आपने जो स्लैब डिजाइन किया है वो कुछ इस तरीके से है, बालकनी वाला स्लैब उसी रूम को, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। तो ये स्लैब अभी आपने फिलहाल में डिजाइन किया है। इसका थिकनेस कितना आया है बेटा आपको? ओके, ये भी आप, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपको एक कैंटिलीवर स्लैब नीचे देना है तो आप बीम के बॉटम में भी दे सकते हो और टॉप में भी रख सकते हो। ओके, दैट विल डिपेंड ऑन यू कि आपको इसको कहाँ पे रखना है। तो ये आपको अभी अपना स्लैब मिल चुका है। बराबर है बात? कुछ इस तरीके से मिला है बेटा, यस और नो बताते चलो। Yes, sir. फिर आपने यहाँ पे क्या करके रखा है पहले से ही, जब आपने पिछले स्लैब की रेनफोर्समेंट डिजाइन किया है दोस्तों, जब आपने पिछले स्लैब की डिजाइन रेनफोर्समेंट को डिजाइन किया था, तो ये मैं आपको 3D में बता रहा हूँ। अगर आप इसको प्लान में देखेंगे, अभी अभी ध्यान से समझ लेना, प्लान में अगर आप देखेंगे तो आपने प्लान में कुछ इस तरीके से अपना प्रीवियस वाला पैनल डिजाइन करके रखा है, अगर आपको याद हो रहा होगा तो। दिस इज योर न्यू पैनल कैंटिलीवर वाली स्लैब। ओके, तो आपने यहाँ पे ना बेटा पहले से ही मेन रेनफोर्समेंट ऐसे दे के रखी है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, यही मेन रेनफोर्समेंट को प्रैक्टिकली ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं आगे। यस, गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, बता दो। सर फिर से एक बार। हेलो, फिर से बता दो सर एक। अरे बेटा ये प्रीवियस स्लैब की, अगर आप थे लेक्चर में तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस स्लैब में हमने अल्टरनेट रेनफोर्समेंट दिया था एलएक्स में, बराबर है क्या? दिस इज योर, ये आपका वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, और ये आपका कैंटिलीवर है उसके आगे का ही वही पार्ट डिजाइन कर रहे थे हम लोग। यस, तो हमने उसमें बेटा अल्टरनेट टॉप में रेनफोर्समेंट पहले से ही दे के रखा है, याद आ रहा है कि सबको? यस सर। हाँ, तो बेटा हम क्या करेंगे, उसी रेनफोर्समेंट को जब आप इसको प्रैक्टिकली डिजाइन करोगे, अगर आपने उस रूम के स्लैब को पहले से ही डिजाइन करके रखा है, तो उसी के बार्स आप क्या करोगे बेटा, मेन बार्स इधर कैंटिलीवर में आगे लेके चलोगे। मतलब कैसे हो, देखो यहाँ पे कैसे दिखेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये आपका मेन बार आ रहा था बेटा बॉटम से, फिर आपने उसको सपोर्ट पे से कुछ लेंथ पे ऊपर कर दिया, तो ऊपर करने के बाद, ज्यादा ऊपर हो गया वो, ध्यान से जरा, तो उसको ऊपर करने के बाद बेटा वो किस तरीके से दिखेगा, देखो यहाँ पे, इसको आपने ये क्रैंक दे दिया तो ये आपको इधर कुछ इस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस और नो, बताते चलो। यस सर। Yes, sir. तो सिमिलर वे में बेटा आपने अल्टरनेट बार दिए हैं ऐसे,
ये सारी चीजें हम बॉटम में कर रहे हैं, हाँ? लेकिन ये आपको दिखाते वक्त ऐसे ही दिखानी पड़ेगी। ओके, तो ये स्टील आपने पहले से ही देके रखा है बेटा इसमें। अगर हम उसी स्टील को एक्सटेंड कर दे तो बात बराबर है कि नहीं, बताओ। ये आपको इस तरीके से दिखेगा। लेकिन बेटा इन बार की स्पेसिंग कितनी है, बता पाएंगे क्या आप पिछला प्रॉब्लम देख के? अल्टरनेट किया था ना आपने, याद आ रहा है आपको? आपने उनको बेटा अल्टरनेट बेंट अप किया था। तो मेन रेनफोर्समेंट की रेगुलर स्पेसिंग सेंटर में कितनी थी प्रीवियस केस में? 140 थी, बराबर। 140। 140 था ना, याद आ रहा है क्या? Yes, sir. यस। हाँ, लेकिन आपको वो अगर वो बेटा इधर 140 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, हाँ, जो एक दूसरे के एकदम बाजू में है, तो अल्टरनेट बार किधर होंगे? अल्टरनेट बार का कितना होगा स्पेसिंग? 280 mm होगा कि नहीं? ये समझ में आ रहा है क्या सबको? ऐसा आपको प्रैक्टिकली पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है आपको वही बात समझ में नहीं आ रही है। एवरीवन इज गेटिंग दिस और नॉट, बताते चलो। Yes, sir. ओके, तो बेटा ये जो आपका पॉइंट है, ये आपका 280 mm पे है अल्टरनेट बार। ये सबको क्लियर हो रहा है? लेकिन आपको 280 mm चाहिए क्या? यहाँ पे आपको कितना होना है? इस कैंटिलीवर स्लैब में आपको बेटा रेनफोर्समेंट कितने mm पे होनी है? मेन रेनफोर्समेंट 170 पे होना है, बराबर है कि नहीं? Yes, sir. यस। तो हाँ, तो इसमें क्या करेंगे बेटा हम लोग? इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अभी आपको जो रेनफोर्समेंट वहां पे चाहिए, उसका कुछ परसेंट आपके पास पहले से होगा, अगर आपने उस बार को एक्सटेंड कर दिया तो इनको क्या करेंगे हम लोग, इसके बीच में, अभी इन दोनों के सेंटर में अलग से बार प्रोवाइड करेंगे। देखो ध्यान से इस चीज को। तो ये जो बार होंगे बेटा वो कुछ इस तरीके से टॉप में रहेंगे, इसके एकदम बाजू में। ओके, और ये भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे 280 mm सेंटर टू सेंटर में। ये रेड वाली चीज है, समझ रही क्या आपको? ये चीज सबको समझ रही है क्या? ओके। Yes. हाँ, तो बेटा इस तरीके से ये डिटेलिंग वहां पे दिया जाएगा। अभी आपको रिक्वायर्ड स्पेसिंग कितना था कैंटिलीवर में? अभी कैंटिलीवर की बात करते हैं। रिक्वायर्ड स्पेसिंग कितना था आपको? 170 mm था, यस और नो? Yes, sir. यस। हाँ, अभी कितना है आपके पास? ये देखो, ये दो बार के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ मुझे, कितना है आपके पास अभी? ये डिस्टेंस कितना है दो बार के बीच में? One forty. 140। तो मतलब सही बता रहे हैं या गलत जा रहा है, आप पहले बताओ। 170 रिक्वायर्ड है, आपने 140 ही दिया, तो बराबर दिया या कुछ कम दिया, बताओ। कम। कम दिया, मतलब सेफ है या अनसेफ है? Answer. अनसेफ है, वेरी गुड। सेफ है सर। आपके बुद्धि की सेफ तो है सेफ। मतलब, हाँ, आपको ऑस्कर पुरस्कार दे देना चाहिए बेटा। चलो यहाँ पे ध्यान दो और एक बार समझ लो। पर सर हाँ, बोलो। ओवर एनफोर्समेंट नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि जितना स्पेसिंग कम करते आएंगे तो स्टील रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी। ज्यादा होगी, बराबर है। लेकिन जब आप बेटा इसको कंटिन्यूएशन में डिजाइन, मतलब रेनफोर्समेंट जब आप इसकी बांधोगे, तब इसका 170 अलग, इसका 140 अलग, ऐसा तो नहीं करोगे ना? ये समझ में आ रहा है? यस। मैंने क्या बोला आपको, कि आप 170 तक दे सकते हो, तो इसके नीचे तो हम दे ही सकते हैं ना, इसके ऊपर नहीं जाना है आपको। समझ में आ रहा है?
Yes. ओके। तो बेटा इसी तरीके से ये साइट पे की जाने वाली चीज है। एक्चुअल जब आप प्रैक्टिकली डिजाइन देते हो ना बाहर, तो आपको कैंटिलीवर अलग डिजाइन करके, ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टील कंपेंसेट करना बोलते हैं। आपके पास पहले से जो स्टील है उसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे, समझ में आ रहा है? Yes. ओके। तो इस तरीके से आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर ये एक तरीका हो गया, दिस इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच, दिस इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच जो मैंने अभी आपको बताया। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन की अगर डिटेलिंग करना चाहेंगे, ओके, ओनली फॉर दिस क्वेश्चन अगर आप डिटेलिंग करना चाहेंगे तो आपको वो इस तरीके से करनी पड़ेगी। जस्ट वेट अ मिनट। अगर आप इस क्वेश्चन की डिटेलिंग करना चाहेंगे तो आपको इसी तरीके से करनी है, डोंट वरी अबाउट दिस। वो मैंने आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल पर्पस बताया कि आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको इसका डिटेलिंग ही करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सिर्फ इतना आपका कैंटिलीवर है, ओके। हाँ, ये इसका बेटा, ये आगे ये कंटिन्यूअस है इधर। हाँ, चलो। तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसे आएगा, एलएक्स लेंथ में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। बराबर है कि नहीं, बताते चलो। Yes. हम्म। ये आगे आपका इधर कंटिन्यूअस है जो हमने बात करी है, और इधर आपका एक एल सेक्शन आएगा 10 मीटर के स्पैन में। चलो अब एक एक चीज बताओ इसकी। टॉप में जो रेनफोर्समेंट आई है वो कैसे आई है, 170 mm सेंटर टू सेंटर, बराबर। Yes. Sir. Yes, sir. हम्म। अभी से अगर आपने इसको क्वेश्चन पेपर में अगर सॉल्व किया ना सीधा सिर्फ कैंटिलीवर स्लैब, तो आप इस तरीके से करोगे जो आया है वो, बराबर। ये उसके हुक से बेटा, ये एक सेम लेंथ पे कट करना इस तरीके से, हाँ, आगे पीछे मत होने देना। तो दिस इज योर मेन रेनफोर्समेंट। और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट कैसे आने वाली है, स्ट्रेट। समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes. Sir. हम्म। तो देखो अभी, जब आप जब आप इस कैंटिलीवर स्लैब को इधर से काटोगे बेटा, ओके, ये हो गया समझो आपका ए सेक्शन। तो इस ए सेक्शन में आपको कैसे दिखने वाली चीजें ध्यान से देखो। कौन से रेनफोर्समेंट डॉट दिखेगी और कौन सी रेनफोर्समेंट आपको लेंथ वाइज दिखेगी, आप बताओ। मेन रेनफोर्समेंट। मेन रेनफोर्समेंट आपको बेटा डॉटेड दिखेगी, ओके, हमेशा याद रखना। और आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है टॉप में जो आपने प्रोवाइड करके रखी है, वो आपको कुछ इस तरीके से इसके नीचे से इसको सपोर्ट देते हुए दिखेगी। यस और नो, ये चीज समझ में आ रही है सबको? और इसमें एक चीज बताते हैं, और इसमें एक चीज आपको बताते हैं कि ये जो आपकी मेन रेनफोर्समेंट पीछे वाले स्लैब से आएगी, देखो अभी वही बात है फिर से, ओके। तो ये आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए इसको हुक दिया जाता है, और फॉर द पर्पज ऑफ वेरियस थिंग दैट इज शेयर एंड अदर थिंग्स, इसको क्या कर दिया जाता है बेटा, डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से इसको मोड़ दिया जाता है कुछ इस तरीके से, हमेशा ध्यान में रखना, कुछ लेंथ तक। यस, ये मेन रेनफोर्समेंट आपका, और ये अल्टरनेट होता है, मतलब एक बार ऐसे और एक बार स्ट्रेट। समझ में आ रहा है क्या? 3D में अगर आपको बताना चाहे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। इसमें भी अल्टरनेट मैकेनिज्म यूज किया जाता है, ध्यान से समझो। ये देखो यहाँ पे, अगर आपने बेटा एक बार इस तरीके से दे दी तो इसके आगे वाली जो बार होगी वो सिर्फ इतनी ही होगी, फिर उसके आगे अगेन। ये समझ में आ रहा है क्या आपको?
Yes, यस sir. सर। इसे बोलते हैं बेटा अल्टरनेट क्रैंक। ये जो है ना, ये जो शेप है, इसे क्रैंक भी बोला जाता है। सॉरी, इसे नहीं बोलते क्रैंक, सॉरी सॉरी सॉरी। ये जो आप बेंट अप देते हो ना, तो इसे क्रैंक बोला जाता है। यस। Yes. हाँ। और इसे बहुत बार कैसे करते हैं, चिमटे की तरह यूज किया जाता है। मतलब अभी इसी बार को क्या करते हैं, देखो घुमा के इधर से ऊपर उठा के ऐसे नीचे डाल देते हैं इधर, तो एक कैंची की तरह बना के नहीं रेनफोर्समेंट, बताओ। Yes. ओके, ये चीज क्लियर है क्या सबको? तो इस तरीके से भी आपकी डिटेलिंग होती है। अलग अलग डिजाइनर का अलग अलग रेनफोर्समेंट डिटेलिंग होता है, अगर आप ध्यान से पढ़ना चाहेंगे तो। इज इट क्लियर सर टू वो एवरीवन? सर हाँ, बोलो। डेवलपमेंट लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? कौन से बेटा? डेवलपमेंट लेंथ भी कैलकुलेट होती है ना? कौन सी लेंथ बोल रहे हो? डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ ना, तो आप एलडी का चेक दोगे ही ना अभी यहाँ पे आपको, इसीलिए तो बॉन्ड का चेक आपके लिए छोड़ा क्यों है। ये जो यहाँ पे आपको एलडी आएगा ना बेटा, निकलेगा कि नहीं आपको यहाँ पे यस एलडी सर। अवेलेबल, उतना लेंथ दोगे आप। बराबर है। ये ले यस। आपके लिए ही तो छोड़ा है वो चीज। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये चीज क्लियर हुआ कि सबको? पहले बता दो, यस रेनफोर्समेंट सर। वाला मुद्दा यस सर। बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ सबको। देखो, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसे भी बोलते हैं अल्टरनेट बेंटापिंग। हाँ, इसको भी अल्टरनेट बोलते हैं बेटा, अल्टरनेट मेन रेनफोर्स बेंटअप। इसमें बेंटअप कुछ इस तरीके से होता है। ओके, 2 सेकेंड। ये भी यार बहुत परेशान करता है पावर पॉइंट। तो ये इस तरीके से आपके बेटा इधर मेन रेनफोर्समेंट दी जाती है। ये समझ में आ रहा है क्या सबको? ये अल्टरनेट है। अभी ये जो पिछली वाली बार है, ये यहाँ पे ऐसे कट कर दी जाती है, इसको ज्यादा आगे नहीं लिया जाता है। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे कट दिखेगी। समझ रहा है सबको? ये चीज समझ रही क्या? यस। दिस इज योर फर्स्ट बार, दिस इज योर Yes, sir. सेकेंड बार। तो ये आपका फर्स्ट बार ऐसे आगे जाएगा बेटा, और ये सेकेंड बार यहाँ पे कट हो जाएगा इस पॉइंट पे। और उसके बाद आपको ये जो स्टील है, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, वो ऊपर इस तरीके से दिखेगा। और अभी बार आपने अगर नीचे भी दिया तो इसके एग्जैक्ट सेंटर में आपको इस तरीके से भी दिख सकता है, क्योंकि इनको भी होल्ड करना पड़ेगा ना हमें। यस। यस। तो आपको इधर ध्यान हमेशा रखना कि आपको इधर भी अल्टरनेट में, अभी देखो ऊपर तो सारे बार आपको दिखेंगे बेटा, लेकिन बॉटम में क्या होगा, आपको अल्टरनेट बार दिखेंगे, क्योंकि ये सब नीचे झुक के फिर से वापस जाएंगे ना। तो अगर आपने यहाँ पे कट मारा, तो आपको नीचे में अल्टरनेट रेड रेनफोर्समेंट दिखना शुरू हो जाएगी। इमेजिन कर पा रहे हो क्या, वो बताओ। यस। यस। इमेजिनेशन इज द एवरीथिंग। ओके, आप अगर इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। ये होगा आपका नीचे का डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके। और ये चीज है बेटा आपका, ये जो सेक्शन है आपका, ये आपका बीबी सेक्शन है, वो कहीं पे आपने यहाँ पे लिया होगा, बीबी। तो ये है आपका प्लान ऑफ रेनफोर्समेंट। ये है आपका सेक्शन ए, सेक्शन बीबी। अभी यही रेनफोर्समेंट को आपको किससे कंपेयर, मतलब किससे कंपेयर करना है बेटा, जो मैंने आपको दिया है। देखो यहाँ पे मैंने पहले से ही आपको दिया है, ये देखो है कि नहीं। इस तरीके से आप बताओ, इसने तो देखो सपोर्ट तक पीछे लाया बेटा, बॉटम स्टील। ये देखो उसका रीजन, देखो उसका रीजन यहाँ पे देखो। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? देखो तो, ये सबको समझ में आ रहा है? ये देखो वही केस है ना अपना, पीछे वाला स्लैब, और उसकी रेनफोर्समेंट देखो आगे एक्सटेंड की गई है। एवरीवन इज गेटिंग यस दिस सर। और नॉट? ये डायग्राम देख रहे हैं सब लोग, ऊपर वाला। तो ये देखो बॉटम का एक्सटेंशन क्यों किया जाता है, यहाँ पे ध्यान दो। बॉटम स्टील इफ रिक्वायर्ड टू रिड्यूस डिफ्लेक्शन एंड टू रेजिस्ट द रिवर्सल ऑफ बेंडिंग मोमेंट। समझ में आ रहा है क्या आपको? अगर समझो कभी कभार ये आपका बाहर वाला पोर्शन होता है, बिल्डिंग के बाहर होता है जनरली फेस से, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, समझो कुछ भी गलत हो गया आपके साथ, मतलब आपके बिल्डिंग के साथ, अगर समझो यहाँ पे बहुत सारा लोड बढ़ गया, तो इधर वाली बाजू ऊपर आने की कोशिश करेगी कि नहीं बेटा?
बताओ तो आप, सीसॉ की तरह हो जाएगा ना ये सपोर्ट बीच वाला। तो ये जो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस है, जनरली इसमें स्ट्रेस आपने कैसा एक्सपेक्ट किया है, इस तरीके से आएगा बेंडिंग स्ट्रेस, बराबर। लेकिन अगर ये उल्टा हो गया तो उस उल्टे रेजिस्टेंस के लिए बेटा नीचे में आपको एक्स्ट्रा बार देने पड़ते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। यस Yes. ये चीज क्लियर हुई क्या सबको? तो ये इस तरीके से आपका कैंटिलीवर का रेनफोर्समेंट डिटेलिंग होता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट, प्लीज बताइए। यस सर। ये चीज क्लियर है Yes. सबको? वेरी गुड। तो बेटा इस तरीके से आपको इसको समझ के रखना है कैंटिलीवर। ये चेक आप लोग घर पे देंगे, हाँ, ये चेक के हिसाब से ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। लेकिन मेरे को आपको रेनफोर्समेंट डिटेलिंग भी बतानी थी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इधर आगे आया हूँ। ओके Yes. तो आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताया, पिछले वाली स्लैब का स्टील आगे कैसे लाया जाता है। तो आप इसको 140 mm पे भी दे सकते हो, लेकिन आपने क्या किया, अभी इसको क्वेश्चन में जिस हिसाब से हमने डिजाइन किया है उसी हिसाब से आपने इसको रखा। तो उस हिसाब से आपको ये चीज इस तरीके से मिली है। आज कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम दे रहा है ये पावर पॉइंट। ओके तो ये है बेटा आपका मेन रेनफोर्समेंट। ओके और इसमें है आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट नीचे से। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन देन? Yes, sir. ओके तो ये बेटा ये चीजें हैं। ये मेरा फिर से गायब हो गया है, तो फिर से एक बार, अरे अल्टरनेट है ना नीचे वाला, तो मेरे को बताना पड़ेगा आपके लिए, जाएगा नहीं। ओके अल्टरनेट वाला बार है। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट निकालना बेटा, दोनों भी डब्बे क्रॉस सेक्शन स्क्वायर होने चाहिए इसके। ये चीज क्लियर है फिर? Yes, ये sir. आपका सपोर्ट है, ये आपका यहाँ पे सपोर्ट है। तो ये आपका सेक्शन बीबी, जो आपने यहाँ कहीं पे तो भी कट किया होगा। यही चीज समझने की है बेटा। प्रोसीजर और प्रॉब्लम आपको 1000 मिलेंगे, लेकिन डिटेलिंग किस तरीके से करना है वो आपको खुद से ही समझना पड़ेगा। तो वही चीज आपको यहाँ पे सिखाई जा रही है। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। और आप डिटेलिंग के लिए क्या करते हो, प्लान में इस चीजों को लिखते हो। आपको ये सारे शीट में ड्रॉ करनी है चीजें। तो ये है आपका, 2 सेकेंड, मेन रेनफोर्समेंट। प्लान में आपको सारी चीजें बतानी पड़ती है, इतना हमेशा याद रखना। ये है आपका 10 mm 5 bars @ 170 mm center to center and alternate bent। ओके अल्टरनेट बेंट दिया गया है इसको इस तरीके से, ये दिख रहा है ना सबको यहाँ पे। और ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। इसका स्पेसिंग कितना आया है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील 8 mm 5 @ 290 mm सेंटर टू सेंटर, बराबर। Yes, आपका sir. स्लैब का थिकनेस हमने लिया है ओवरऑल 140 mm, और इफेक्टिव कितना लिया है, दिस इज कैपिटल डी एंड स्मॉल डी इज योर 120 mm। तो यहाँ पे आपको सबके इधर में हर क्वेश्चन के बाद में आपको डिजाइन समरी लिख के देना पड़ेगी। डिजाइन समरी, दिस इज अ गुड थिंग टू बी गिवन बाय एनी स्ट्रक्चरल इंजीनियर। तो इसमें बेटा डेप्थ मेंशन करते हैं, कैपिटल डी मेंशन करते हैं, मेन रेनफोर्समेंट मेंशन करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट मेंशन करते हैं। ओके तो ये आप डिजाइन समरी भी ऐसे लिख के दे सकते हो आखिरी में। यस, सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? कैंटिलीवर स्लैब क्लियर है सबको? Yes, sir. कैंटिलीवर स्लैब क्लियर है बेटा? ये हमेशा याद रखना, ये जो बेंट अप किया जाता है इस चीज को क्रैंक बोलते हैं। ये ओरल में पूछा जाता है बहुत बार।
ये यहाँ पे ये एंड में जो होता है दिस इज कॉल्ड एज अ हुक। नियर के सपोर्ट के बाजू में जो आप देते हो एंड में उसे बोला जाता है हुक। ये एल हुक, ये यू हुक है, बराबर। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। चलिए, तो यहाँ से हमने वन वे का डिजाइन भी कंप्लीट कर लिया है। अभी अगले लेक्चर में हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज योर कंटिन्यू